ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಮತ್ತು 12 ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ಗದರಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನನ್ನೇ गदरिसुत्ताने। देवर नाम के स्तोत्र उंटागली। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं आशा करता हूं हम सभी लोग जो है सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमें संभाला है। परमेश्वर के नाम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस आराधना जो है हम लोग आज की आराधना एक विशेष आराधना को मना रहे हैं, फादर्स डे यानी पिता का दिन जो है हम लोग मना रहे हैं। इसलिए कुछ लोग जो है कुछ फादर्स जो है इस सर्विस को लीड करेंगे। तो आशा करता हूं जो उनके जरिए, उनके प्रार्थना के जरिए, वचनों के जरिए जो है हम परमेश्वर की आशीष को पाने वाले हो पाएंगे। क्यों ना हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना पूर्वक जो है इस आराधना को हम लोग शुरू करें। सभी लोग जो है पूरे भक्ति से प्रार्थना पूर्वक जो है इस आराधना में भाग लेने के लिए विनती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जैसे तूने अपने वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ तेरी उपस्थित होती है। आज हम इस ऑनलाइन सर्विस को तेरे आशीष से चला, आज इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू चला इसे पिता, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा तेरे नाम से महिमा मिले। लॉर्ड, आज का जो वचन है उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। होने दे पिता, आज जो वचन बोला जाए वो तेरी तरफ से हो। लॉर्ड, आज ये पैंडेमिक सिचुएशन में तूने हम सबको संभाला, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, आगे भी संभालना पिता। इस कोरोना वायरस को जल्दी से ख़त्म कर। जैसे तूने क्रॉस पे शैतान को हराया, वैसे ही आज इस कोरोना वायरस शैतान को भी हरा दे पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के उद्धार नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। अप्पा येसप्पा नीने नन्ना सर्वस्व। अप्पा अप्पा येसप्पा नीने नन्ना सर्वस्व। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು। ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನೆನೆ ಹೊಂದಲಿ। ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ। ನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು। ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲಿ। ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲಿ। ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು। ಯೇಸು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ। ಯೇಸು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ। ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆದರುವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆದರುವನು। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ।
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 35ರಿಂದ 42 ವಚನದವರೆಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 35 to 42. ಆತನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿ ಹೋದಳು, ನೀನೇಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರು. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಯೇಸು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತ್ತು ಆತನು ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನ ಇವರನ್ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಗದ್ದಲವನ್ನು, ಕೆಲವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು, ಗೋಳಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವುದು, ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಆಶೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದವರನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಲಿತಾ ಕೋಮ್ ಅಂದನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅಮ್ಮಣಿ ಹೇಳು ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯು 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಎಂಬುದೇ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 35 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे हिंदी में। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलिता कुमी, इसका अर्थ है, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। परमेश्वर पढ़ा हुआ वचन को आशीर्वादित करे। आमीन। इसे एक ही बात समझ में आती है कि अगर हम यीशु मसीह पर अगर हम पूरी तरह से भरोसा करेंगे, पूरी तरह से विश्वास करेंगे, तो हम ज़रूर उसके कार्य को हम देखेंगे और जानेंगे। आज हमने देखा कि कैसे हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है। हमारे परिवार में, हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में या हमारे दोस्तों में के जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, या फिर जिनको हम लोग जब आती है तो हम लोग खुद का सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन जब कुछ होता नहीं है तभी हम कहते हैं कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए आप परमेश्वर से विनती करना। लेकिन हम यहाँ पर जैसे देखते हैं, पहले याईर यीशु मसीह के पास आया तो वो लाचार होकर आया था, मजबूर होकर आया था। उसने अपना सारा दम लगा दिया अपनी बेटी को ठीक करने के लिए। उसने पैसे खर्चे किए, वैद्य को बताया और हकीमों को बताया, या फिर बहुत सारे इलाज किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जब वो लाचार, बेबस, मजबूर हो गया, तब वो यीशु मसीह के पास आया। ये पहला पॉइंट है। तो हम लोगों को उसकी तरह नहीं आना है। हम लोग को विलिंगली खुद से परमेश्वर के पास आना है। पहले सब एफर्ट करके, अभी कोरोना के समय सब पहले अलग अलग तरह के सब करते हैं, फिर बाद में जब कुछ नहीं होता है तब लोग परमेश्वर के पास आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमें सबसे पहले विलिंगली या खुद से परमेश्वर के पास आना है, पहला। दूसरा, हमें
धीरज रखना है। जैसे याईर ने जब यीशु मसीह के साथ जा रहा था तो यीशु मसीह ने जैसे उस स्त्री को छूकर चंगा किया, तो ये सब करते हुए ज़रूर थोड़ा समय लगा होगा। तो हम लोग आजकल इंस्टेंट चाहते हैं कि अगर हम अभी प्रेयर करेंगे तो इंस्टेंट वहाँ पर चमत्कार होना चाहिए, वहाँ पर हीलिंग होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम, म्हणजे वो उसके समय में सब कुछ सुंदर करता है। और जब यायर भी उस समय वहाँ पर रुका, उससे उसके धीरज को परखने का मौका मिला। अपने आप को, यस फादर, हम लोग भी धीरज रखना चाहिए, वी शुड सब्र रखना चाहिए। अगर हम कुछ मांगेंगे या किसके लिए दुआ करेंगे या किसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमें सब्र रखना है, और हम जब सब्र रखेंगे तभी हम उसके कार्य को देखेंगे। तीसरा, उस पर भरोसा रखना है, उस पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है पूरी तरीके से। जब वो स्त्री जो 12 साल से तड़प रही थी, जो उस रक्त बहाव से, उसने क्या कहा, अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े के छोर को भी छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँ। कितना महान विश्वास है उसका कि मैं उसके एक छोर को भी अगर छू लूँगी। वैसा विश्वास सचमुच हमें भी रखना है, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा ही मुझे लगता है कि याईर के मन में भी वो विश्वास आया होगा, और उसने अपने बेटे को मरने के बावजूद भी उसे यह विश्वास था कि यीशु मसीह मेरी बेटी को जिला सकता है। तो हमें भी वही यकीन, वही विश्वास रखना है, और पूरी तरह से विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर ये कार्य कर सकता है। और चौथा, हमें परमेश्वर को बुलाना है, आमंत्रित करना है। ये अगर हम देखेंगे कि याईर की बेटी, उसके दास ने कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है। अगर और कोई माता पिता होता तो छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर वो घर भाग जाता था या दौड़कर चला जाता था, लेकिन याईर ने उसके साथ यीशु मसीह को अपने घर ले आया। इससे ये बताता है कि यीशु मसीह जो है हर एक स्थिति को अच्छा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे जिलाया। इससे ये मालूम होता है कि हमारे सिचुएशंस, हमारे परिस्थिति, हमारे बीमारी, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे डिफिकल्टी कितने बड़े हो या वो मर चुके हो, उतने भयानक होंगे, तो भी अगर यीशु मसीह को अगर हम आमंत्रित करेंगे तो उसमें वो शक्ति है कि वो मरे हुए सिचुएशन को भी वो जिला सकता है। यस, वो मरे हुए वो प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकता है, वो क्लीन कर सकता है या उसे सही कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो हर एक चीज़ में, तो हमें सबसे पहले लाचारी में या मजबूरी में नहीं आना है, हमें विलिंगली खुद से हमें परमेश्वर के पास आना है। और हमें दूसरा पेशेंस या धीरज रखना है और सब्र रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जरूर उत्तर देने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं मैं उसके आवाज़ सुनता हूँ, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ और उन्हें जवाब देता हूँ। तीसरा, हमें बिलीव करना है, उन्हें ट्रस्ट करना है या हमें विश्वास करना है, वो भी पूरी तरह से 100% उस पर विश्वास करना है और सचमुच परमेश्वर कार्य करेगा। और चौथा, हमें परमेश्वर को आमंत्रित करना है, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो हमसे सॉल्व हो या ना हो, लेकिन हम सबसे पहले हम अगर परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे तो परमेश्वर उस स्थिति का जायज़ा लेगा और हर एक चीज़ को सही सही ठीक करेगा। सचमुच अगर हम इस कहानी के द्वारा ये जानेंगे कि पिता, एक याईर, एक याजक, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी अपनी बेटी के जान को बचाने के लिए वो कितना दीन बन गया, वो यीशु मसीह के चरणों पर गिर गया। एक सर्वेंट गिरता है किसी के पैरों पर, तो इतना बड़ा आदमी अपना सब कुछ छोड़कर सब लोगों के सामने यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर कृपा करेगा, हम पर दया करेगा और हमें लज्जित नहीं होने देगा। सचमुच यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है ना, पिता हमसे इतना प्यार करता है। आज हम लोग फादर्स डे मना रहे हैं और फादर्स डे में अगर हम ये जानेंगे कि पिता
हम सबसे, जो परमेश्वर पिता है जो स्वर्ग में है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहते कि हम कोई भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, छोटे बच्चे हो या बड़े हो या वृद्ध हो या कोई भी हो, वो नहीं चाहता कि वो या हम नाश हो। तो वो क्या करता है, हमें बचाने के लिए हर वक्त हमें सहायता करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहता है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसका सबसे प्रिय चीज़, अपना बेटा उन्होंने हमारे लिए दिया। सचमुच अगर ये हम जानेंगे तो हमें परमेश्वर के प्रेम को हम जानेंगे, है ना। परमेश्वर आगे मत्ती में भी कहता है कि तुम जो बुरे हो, जो इंसानी पिता हो, जो धरती के पिता हो, तुम जो बुरे होकर अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें अगर रोटी मांगेगा तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? अगर वो तुम्हें मछली मांगेगा तो क्या तुम उसे सांप दोगे? तो तुम जो बुरे होकर जब अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो, तो मैं एक अच्छा परमेश्वर तुम्हें कितनी अच्छी चीज़ें दूंगा। तो ये परमेश्वर का वादा है कि अगर हम सही नहीं है, अगर हमारा व्यवहार सही नहीं है और हमारा जो मन या दिमाग या सोच या हमारा शरीर सही नहीं है, तो हमें ये वक्त है परमेश्वर के पास आकर उससे क्षमा मांगने का। और वो हमें इतना दयालु परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमें वो अपने पास बुलाकर हमें चंगाई देगा और हमें छू कर हमें राइट करेगा, है ना। तो इस फादर्स डे के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी याईर की तरह, पहले उसे नहीं पता था, लेकिन जब उसे यीशु मसीह का महत्व पता चला तो अपने आप को पूरी तरह से उसने यीशु मसीह के चरणों में अर्पित किया। हम भी अपने बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन कलीसिया में जो भी है बच्चे हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। उन्हें भी हम परमेश्वर के राज में चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारी कद्र नहीं करते, हमारे बच्चे हमसे बातें नहीं करते। सिर्फ माँ को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है क्योंकि माँ प्यार जताती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता जो है वो हमसे इतना प्यार करता है, वो उजागर नहीं करता, वो बताता नहीं है ना। तो हम लोग माँ को ही ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, लेकिन पिता भी है, पिता भी उससे उसी तरह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पिता काम नहीं करेगा, पिता अगर बाहर जाकर काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो अपने बच्चों की या अपने घर की परवरिश कैसे करेगा, है ना। लेकिन पिता बताते नहीं हैं, पिता उजागर नहीं करते, इसलिए लोग पिता को उतना रिस्पेक्ट या उतनी इज्जत नहीं देते जितना माँ को देते हैं। लेकिन पिता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जो मसीह पिता है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे परमेश्वर की राह पर चले? तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे अपने माँ और पिता को देखकर सीखते हैं। तो सबसे पहले पिताओं को अपने घुटनों पर आना है, क्योंकि जब हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे बच्चे हमें देखेंगे और वो भी वैसे ही करेंगे। और हमें वचन में आगे बढ़ना है और इसी तरह कलीसिया के कामों में आगे बढ़ना है और उन्हें भी हमें, बच्चों को भी हमें मदद करनी, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उनके विश्वास को बढ़ाने में। और जब हम ऐसा करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें भी रिस्पेक्ट करेंगे, हमें भी वो अच्छी तरीके से बातें करेंगे, हमें भी हमारे साथ खुशी से रहेंगे और हम जैसा परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं वैसा वो भी कल चलेंगे। और जब वो चलेंगे तब कल वो हमें नहीं भूलेंगे। तो ये जो वचन है, ये मैं मानता हूँ कि आज परमेश्वर का जो प्रेम हमारे ऊपर है और जो प्रेम याईर ने अपने बेटे की तरह बताया, वो प्रेम अगर हम जानेंगे तो सचमुच हमारा जीवन भी परमेश्वर के अनुसार होगा और परमेश्वर हमें आशीष करेगा।
मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन परमेश्वर ने जो हमें दिया है ये हमारे जीवन में ज़रूर कार्य करेगा और ये हमें और हमारे बच्चों को परमेश्वर के राज्य में और अधिक बढ़ाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से एक बार पास्टर डैनियल को और कलीसिया को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और परमेश्वर यीशु मसीह को जिन्होंने मुझे ये वचन दिया कि मैं आपके सामने बांट सकूँ। तो आइए एक दुआ के साथ हम ये क्लोज करते हैं और अपने आंखें बंद करते हैं। फादर गॉड वी जस्ट वांट से थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया, खासकर मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बारे में, आपके प्रेम के बारे में परमेश्वर मैं बता सकूं। अगर मेरे द्वारा कुछ गलती हुई है या मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ करना परमेश्वर और मुझे आपके नज़र में राइचियस बनाना परमेश्वर। आप परमेश्वर जो भी ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपने उनके हृदय को, उनके दिमाग को, उनके दिलों को छुआ है परमेश्वर और आपने परमेश्वर हमें आपकी नज़र में राइट बनाने के लिए परमेश्वर अपने कार्य शुरू किया। आपको धन्यवाद प्रभु जी। और परमेश्वर आपने मुझे ये मौका दिया है इसलिए आपको फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। ನಾಮಗಳಿರಲು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೆದರಿ ಸರಿಯಲು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ ಬೆರಳು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೇ ತಂದೆಯ ಬೆರಳಲೇ ನಾನಡೆದಾಡಿದೆ ತಂದೆಯ ತೋಳಲೇ ಧೈರ್ಯದ ಆಗರಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳಿದ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿದ ಜಗವನ್ನು ತನ್ನ ನೋಡಲು ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮಿಸು ಜೀವನ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸು ಜ್ಞಾನ ಹಾರೆದು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾರೈಸುವ प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आगे बढ़ने से पहले जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है अपने मंथली ऑफरिंग्स को सही रीति से जो है देते रहे ऑनलाइन, जबकि हम लोग ने जीपे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, डायरेक्टली चर्च अकाउंट में जाएगा और ट्रेजरर हमारे जो रवि है वो जो है आपकी रिसिप्ट को बना के अपने घर पे रखेंगे। जब भी चर्च खुले या जब भी आपको चाहे आप वो रिसिप्ट्स को जो है आप ले सकते हैं, उनसे फोन करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं रिसिप्ट्स के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में
मुझे कुछ कमी होने नहीं दिया है, या हमारा परिवार को अच्छी रीति से संभाल रहा है, फाइनेंशियली हम लोग अच्छे सेट है, तो प्लीज अपने मंथली कंट्रीब्यूशन को जो है सही रीति अनुसार जो है एवरी मंथ देने के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। और संडे ऑफरिंग्स को जो है आप अपने घर पे जो है एकत्रित कीजिएगा, एक डब्बा जो है आप बनाइएगा ताकि उसमें हम लोग संडे ऑफरिंग को डालें, क्योंकि ये हमारा नियमित एक आदत होना जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर ने जो हमें दिया है तो परमेश्वर के लिए वो संडे ऑफरिंग, वो मंथली ऑफरिंग जो है हम सही रीति अनुसार जो है दें। और उसी के साथ जो है मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस या इस चर्च सर्विस को नहीं देख रहे हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपना समय संडे को जो है ये रिकॉर्डिंग किया जाता है आपके लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपके बच्चों के आशीर्वाद के लिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है पूरे परिवार सहित जो है इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं अपना कोई बात नहीं, परमेश्वर की बातों को जो है आप तक लेकर आने की कोशिश करता हूं। हर हफ्ते जो परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर मुझे प्रेरित करता है वो वचन मैं आपके सामने रखता हूं। और प्रार्थना और गीतों में जो है हम एक साथ मिलकर, भले चर्च बंद है लेकिन ऑनलाइन ये मौका परमेश्वर ने दिया है, तो हम घर बैठे जो है अपने समय पर आप जो है उस वीडियो को देखिएगा और चर्च सर्विस जैसा उस वीडियो को देखते हुए अटेंड कीजिएगा, पूरे भक्ति से, पूरे विश्वास से। मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देखने की कोशिश करेंगे। और जैसा पहला संडे एवरी मंथ हम लोग जूम पे करते हैं, वहां पर भी जो है बहुत कम लोग एकत्रित होते हैं, पता नहीं क्यों, कौन कितना बिजी है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसा समय आ सकता है कि परमेश्वर जो है आपको समय ना दे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब परमेश्वर ने ये समय दिया है तो हम व्यर्थ क्यों होने दें। परमेश्वर की आराधना में जो है कुछ समय, पूरा दिन भर तो नहीं है, जस्ट 1 आवर, 1 घंटा जो है हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए दे सकते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट पूरा फैमिली सहित जो है चर्च सर्विस को मिस ना करते हुए जो है चर्च सर्विस को यूट्यूब पे और जूम पे अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में बहुत सारे अटेंडेंस को हम लोग देख सकेंगे और बहुत सारे लोग चर्च सर्विस वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू सो मच। Praise the Lord everyone. I am Sean D'Souza who would like to tell something important about Father's Day. In everybody's life, the father is the first teacher who teaches us about good and evil. In our life, father guides us to make the right decision in our life. We learn the meaning of discipline from our father. In everybody's life, father plays the most significant role. He is the one who supports you in all your dreams and desires. He makes lots of sacrifice but never stops supporting us. In every stressful situation, the first person we remind of our father. The whole family relies on the shoulder of our father. He teaches us manners and ethics. To appreciate the hero of our life, we celebrate Father's Day. A happiest Father's Day to all our fathers. We never told you, Daddy, that you are our real life hero. We admire you from our childhood. I love you, Dad, from the bottom of my heart. Thank you. ಸಲಹೆಗಾರ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ ಬಾಳು ಕಲಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಾರ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸೋ ಜಾದುಗಾರ ಹಗಲು ಬೆವರಿನ ಕೂಲಿಕಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಹುಕಾರ
प्रेज द लॉर्ड। सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रदर मोसेस का, जिन्होंने बहुत अच्छे रीति से हमें वचन से संबोधित किया है। परमेश्वर उनके जीवन में और आशीष लेकर आए और उसकी सेवकाई में और अधिक रीति से वो और उसके परिवार जो है इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर के आनंद में, खुशियों में वो परिवार जी सके। ऐसा मेरा प्रार्थना है, परमेश्वर से निवेदन है। थैंक यू मोसेस ब्रदर। और उसी रीति से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यूथ्स का, जिन्होंने बहुत अच्छे रीति से उस एक्ट को सेट किया। थैंक यू वेरी मच। उसी रीति से कलीसिया के कामों में जो है आप अपनी रुचि लगाना आवश्यक है। तो सारे जवानों से रिक्वेस्ट है इसी रीति से परमेश्वर की कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया के लिए सही रीति से अपने योगदान को दे। और मैं सारे संडे स्कूल के बच्चों को जो है बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने अपने समय को उस रीति से दिया और इस अच्छे एक्ट को बनाया, फादर्स डे को स्पेशल बनाया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और साथ ही साथ संडे स्कूल टीचर्स को मैं धन्यवाद करूंगा, रोमा और स्वीटी को, कि अच्छी रीति से जो है इन्होंने निर्देशन किया और फादर्स डे को जो है स्पेशल बनाने में सहायता को किया है। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स सभी कमिटी मेंबर्स को जिन्होंने इस सर्विस को लीड किया और अच्छे रीति से जो है उन्होंने अपने रोल्स को निभाया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसी रीति से मेरा रिक्वेस्ट है, हम जैसे पोस्ट में बढ़ते हैं, जैसे रुतबे में, हमारे पर्सनल ग्रोथ में हम लोग बढ़ते हैं, वैसे ही आत्मिक रीति से बढ़ना भी जरूरी है। कलीसिया के एक्टिविटीज में भी बढ़ना जरूरी है, उसकी प्रार्थना में, वचन में और सारे जो भी काम है चर्च के जो है उसमें भी बढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आपने जो है मेरे बात का सम्मान रखा और सही रीति से अपने वीडियोस को बना के मुझे सही समय पर भेजा है, इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आगे भी मैं आशा करूंगा कि आपका सपोर्ट इसी रीति से पास्टर को या कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को जो है हैप्पी फादर्स डे स्पेशली। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। जब मैं सोच रहा था कि फादर यानी पिता, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज अ फादर मीन्स, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या है उसका पोजीशन, किस रीति से हम पिता को समझ सकते हैं। परमेश्वर ने अगुवाई दिया कि इन कुछ बातों से जो है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरा ये विश्वास है, मेरी आशा, मैं आशा करता हूं कि सच में इन बातों से जो है किस रीति से एक पिता का सम्मान है या पिता का वजूद है वो हम लोग जानेंगे। पिता की जिम्मेदारी को हम लोग समझेंगे और एक एहसास पिता होने का कितना खूबसूरत है, कितना ब्लेसेड है, आशीर्वाद को हम लोग जानने वाले हो पाएंगे। फादर इंग्लिश में जो है FATHER, फादर यानी 6 लेटर वर्ड। तो अच्छी बातें हम लोग पिता के बारे में हम लोग जानेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट इज F, फादर स्टैंड्स द वन हु फैब्रिकेट्स द फ्यूचर। फैब्रिकेट्स फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो हमारे भविष्य को बनाता है। क्या ये गलत होगा कि एक पिता अपने परिवार का, अपने बच्चों का जो है भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, हर कोशिश करता है कि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, सिक्योर रहे और सही रीति से रहे। तो इसीलिए मेरा पहला जो शब्द है F, फैब्रिकेट्स फ्यूचर, यानी ऐसा पिता वो है जो हमारे भविष्य को जो है बुनता है, सिलता है, उसको बनाने की कोशिश करता है। सच में आपका पिता आपका भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो इसलिए उसका सम्मान, उसका आदर उस रीति से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन सेकंड A, व्हाट इज A स्टैंड फॉर? एक्सेप्ट्स यू विदाउट अ शो। जी हां, वो आपको अपनाता है बिना दिखाए, बिना दर्शाए। अपने प्यार को वो दिखाता नहीं है, अपने प्यार को वो सही रीति से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो पिता है, लेकिन आपको पूर्ण रीति से अपनाता है। वो भले हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन सच में वो अपनाता है। एज यू आर, जैसे आप हैं वैसे वो अपनाता है। भले वो आपको टोकता है, आपको
गालियां देता है, आपको मारता है, आपको जो है बोलते ना बहुत स्ट्रिक्ट जो है बिहेव करता है, हमेशा जो है आपको कुछ ना कुछ कहते रहता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो आपको संपूर्णता से अपनाता है। सच में वो ही आपको बोल पाता है जो आपका भविष्य अच्छा बनाना चाहता है और जो इंसान आपको संपूर्णता से अपना करके अपनाता है। ये हमारा पिता है, वो आपको संपूर्णता से अपनाता है। आप भले मानो या नहीं मानो, ही एक्सेप्ट्स यू विदाउट अ शो। वो दर्शाएगा नहीं पिता, लेकिन फिर भी वो आपको संपूर्णता से अपनाएगा। थर्ड थिंग इज टी, ट्रस्टवर्दी इन एनी सिचुएशन, यानी कि हर एक परिस्थिति में हमारा पिता विश्वास योग्य है। सच में आप कोई भी सिचुएशन में जो है आप अपने पिता के ऊपर भरोसा कर सकते हो। भले आपको लगे कि ये मैं अगर पिता के पास जाके मेरा पिता अगर ये बात जान लेगा, समझ जाएगा, या तो उस समय में जो है मुझे डांटेगा, गुस्सा करेगा, मारेगा, लेकिन फिर भी आपको बचाने वाला उस सिचुएशन में वो पिता ही है। यस, ही इज ट्रस्टवर्दी, वो विश्वास योग्य है हर एक सिचुएशन में, क्योंकि आप कोई भी परिस्थिति में हो, आपको आपका पिता जरूर बचाने वाला है। शुरुआत में हो सकता है वो स्ट्रिक्ट है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो आपको बहुत सुनाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वो बचाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी कोई गलती हो या कुछ भी हो तो अपने पिता के पास जाइए, प्यार से जो है कन्फेस कीजिए और उसकी डांट को सुनिए, उसकी बातों को सुनिए। आप नहीं जानते कि वो कितना आपको बचाने की कोशिश करता है। सच में मैं पता नहीं प्रोग्राम को देख रहा था, तमिल, वो शायद एक मूवी रीति से उसको बनाया गया था। एक पिता जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के लिए जो है बहुत ही, एक्चुअली उसमें ऐसा स्टोरी दिखाया गया है कि उसका बड़ा लड़का जो है किसी बड़े इंसान को, या पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा लीडर है गांव का, उसको वो मारता है और उसके बदले में जो है उसको जेल में पकड़वाया जाता है, या पुलिस अधिकारी उसके हाथ में इसके लिए उसको जो है पकड़ लेते हैं। तब ये पिता जो है उससे जाके माफी मांगता है, क्षमा करता है, लेकिन पता है वो बंदा क्या कहता है, अगर तेरे बेटे को तुझे बचाना है तो सबके सामने मेरे पैरों पर गिर के तुझे माफी मांगना होगा, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, गांव में जो भी लोग हैं हर घर में जाके उनके पैरों पर, जो भी मैन है, जो भी पुरुष है, उसके पैरों पे गिर के जो है माफी मांगना पड़ेगा सबसे। दिस वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, बट उस समय पर पिता को कितना गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए वो पूरा गांव, सभी लोगों का पैर पड़ते हुए जाता है और अपने बेटे को जो है छुड़ा कर ले आता है। दिस इज वॉट अ फादर डज। हमको लगता है कि वो बुज़दिल है, वो कायर है, वो डरपोक है, वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो दब के भी अपने परिवार की सुरक्षा करता है। इसलिए हर परिस्थिति में जो है हमारा पिता विश्वास योग्य है। यस, एंड माय फोर्थ थिंग इज एच। एच स्टैंड्स फॉर होनिंग मशीन। या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, हम लोग ने शायद सुना होगा, पता नहीं कहां पर आप लोगों ने लिखा पढ़ा होगा पेपर्स वगैरह में, वी हैव टू होन आवर स्किल्स, HONE, यानी कि हमको जो है अपनी प्रतिभाओं को जो है धार देना जरूरी है। होनिंग मशीन मैं अपने फादर को कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रतिभाओं को, हमारे बॉडी को जो है, हमको जो है, जो फर्निश करता है या जो पॉलिश करता है या जो धार देता है, वो हमारा पिता है। अगर आप ऐसे पिता नहीं हैं तो आप सभी पिताओं से मैं कहना चाहूंगा, आपको ऐसा बनना अति आवश्यक है। आपके बच्चे में क्या प्रतिभा है उसको सही रीति से डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। बहुत बार बच्चे शायद गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन पिता, हमारी जिम्मेदारी है उसके टैलेंट्स को दबोचे मत, दबाइए मत, उसके टैलेंट्स को सही दिशा दीजिएगा, उसको घमंड में बढ़ने ना दे, लेकिन उसको नम्रता के साथ उसमें प्रोग्रेस करने का एक मौका दे। बिकॉज वी फादर्स आर कॉल्ड होनिंग मशीन।
अपने बच्चों को जो परमेश्वर ने प्रतिभा दिया है, उन प्रतिभाओं को सही रीति से, उन टैलेंट्स को सही रीति से जो है हमें गाइड करना जरूरी है। बिकॉज वी आर कॉल्ड होनिंग मशीन। हम लोग एक मशीन है, पिता एक मशीन है जो सच में मशीन की तरह काम करता है, लेकिन उस काम में भी जो है अपने बच्चों के स्किल्स को, टैलेंट्स को जो है पहचान कर उसको सही दिशा से जो है पॉलिश करने का धार देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सके, अपने करियर में, अपने जिंदगी में जो है एक तरक्की को देख सके और पाएंगे जब पिता का वो मार्गदर्शन मिलता है। देन E stands for exemplary leader for the family. Exemplary leader बहुत बड़ा शब्द है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाला ये शब्द है, लेकिन एक पिता ऐसा होता है, ऐसा एक पिता है। जो हमारा पिता है वो इस रीति से ही अपने कार्य को करता है और इस रीति से ही होना चाहिए, बिकॉज अपने परिवार के लिए जो है वो एग्जाम्पलरी यानी एक मार्गदर्शक, एक उदाहरण देने वाला जो है सभी के नजरों में जो है सही होना अति आवश्यक है। वो अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हीरो होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पलरी लीडर यानी क्या? एक रोल मॉडल होना जरूरी है कि हमारा बच्चा जो है, हमारा परिवार हमको लीडर माने और हमको देखकर जो है बातों को सीखे, हमको देखकर जो है जिंदगी जीने का तरीका सीखे। वैसा हर पिता को बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो है हम पिता लोग, जो सारे पिता है, कभी कभी बहुत सारे लोग जो है गलत आदतों में फंस कर, क्या गलत आदत है ये आप सभी को जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका गलत आदत जो है आपके बच्चों पर बहुत अधिक रीति से प्रभाव डालता है। उसको लगता है कि एक एज होने के बाद जब पिता या वो उस स्थान पर आते हैं तो हमको भी ऐसा करना है। जो गलत आप करते हैं ना, वो आपका बच्चा भले आज नहीं सीख रहा है, लेकिन कल वो वैसा ही करेगा, बिकॉज उसका मार्गदर्शक कौन है? आप खुद है, जो उसका पिता है। आप अपने पत्नी को मारते हैं, कल आपकी बेटी मार खाएगी, कल आपका बेटा किसी दूसरे के लड़की को जो है मारेगा। आप दारू पी के जो है व्यर्थ काम करते हैं, वेस्ट काम करते हैं, हो सकता है कल आपका बेटा भी ऐसा करेगा। आप अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से नहीं निभा पा रहे हैं तो आपका बच्चा के हृदय में, उनके दिल में कैसे आप रोल मॉडल बन पाएंगे, कैसे आप उदाहरण वाला जीवन जी पाएंगे, जबकि परमेश्वर ने आपको पिता का ये औहदा दिया है अपने परिवार को जो है सही रीति से नेतृत्व करने का, लीडरशिप करने का। उस जिम्मेदारी को हमको बखूबी से निभाना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चों के लिए पिता हीरो है, हर परिवार के लिए पिता जो है एक लीडर है और उसको एग्जेम्पलरी यानी रोल मॉडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम लोग कोई भी गलत कार्य को कर रहे हैं, अपने आप को सही दिशा में लेकर आइए। अगर आपके बच्चों का फ्यूचर आपको सही बनाना है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पिता भविष्य बनाता है, लेकिन वो भविष्य सही बनना है तो आपको भी सही होना जरूरी है। यस, वो लड़का हो या लड़की हो, आपके बच्चे, लेकिन उसके ऊपर गलत प्रभाव आपकी आदतों का जरूर और 100% पड़ने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पिता को कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, या बोलते ना झूठ बोलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कैसा झूठ बोल रहा है, आपने तो सिखाया था झूठ नहीं बोलना है और आज आप ही हमको झूठ बोलने को कह रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना। और कभी कभी हम लोग गलत करते हैं तो बच्चे आकर कहते हैं पापा ये गलत है, ऐसा मत करो। सुनो उनकी बात को। क्यों पता है? वो आपकी गलती को बताते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका संस्कार उसमें आपने दिया है, क्या सही क्या गलत है आपने उनको अच्छे रीति से बताया है, इसलिए आज वो लोग आप क्या गलत कर रहे हैं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू विल हैव, कि आपके बच्चे जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको गलत मत समझो, उसको जो है नेगेटिव मत लो, उसको पॉजिटिवली लेके जो है एक ब्लेसिंग मानना है। क्यों वो सही बता रहा है? पता है, क्योंकि एक पिता आपने अपनी जिम्मेदारी को सही निभाया है, अपने बच्चों को सही सिखाया है, इसलिए वो बच्चे जो है क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत हो रहा है, वो आपके सामने जो है एक्सपोज कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। दैट इज अ गुड ब्लेसिंग। हमें कोई छोटापन महसूस करने की बात नहीं है जब हमारे बच्चे हमको सिखाए।
बहुत बार बहुत फैमिलीज में ये होता हुआ मैंने देखा है। दिस इज अ एक्सपीरियंस ऑफ मेनी। बहुत सारे लोग टेस्टिमनीज को दिया है कि मेरा बच्चा, बहुत बार हमारे कलीसिया में भी शायद हम लोग ने सुना है एक बार कि एक माँ रो रही थी, उसका बच्चा आके बोलता है, अरे मम्मी तू क्यों रो रही है, तो अभी दूसरे का फोन आया, तूने उसको बोला कि विश्वास कर, परमेश्वर अच्छा करेगा, और अभी तेरा ही विश्वास कम हो गया, तू रो रहा है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। शायद ये गवाही मैंने सुना है अपनी कलीसिया में, आपने भी सुना है। बच्चे हमें जो है कभी कभी बातों को सिखाने की कोशिश करते, इसका मतलब है आपने उसको अच्छी बातें सिखाई है, यू आर एग्जाम्पलरी लीडर, और आप शायद अभी भटक गए हैं, तो आपको सही रास्ता जो है उनके जरिए परमेश्वर आपको दिखा रहा है, बच्चे नहीं, परमेश्वर इज यूजिंग बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। तो बी अ रोल मॉडल टू द फैमिली, बी एन एग्जाम्पलरी लीडर फॉर योर फैमिली, दैट इज द रोल ऑफ फादर। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये समय है कि हम लोग वैसा बने। लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट्स। द फादर इज द वन, पिता वो है जो सबसे ज्यादा आदर सम्मान पाता है, और वो होना चाहिए जो सबसे ज्यादा आदर सम्मान देता भी है। यस, अगर आप पिता हैं तो आपकी पत्नी को यानी बच्चों की मां को, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने खुद के माँ बाप को, एल्डर्स को जो घर पे हैं, उनको आपको भी आदर देना जरूरी है, क्योंकि आपको वो सम्मान मिलता है तो वो सम्मान जो है आपको जो है उनको भी देना जरूरी है, क्योंकि वही सम्मान जो है आपके बच्चे भी सीखने वाले हैं। Yes, you have to respect. Father is the one who is respected and who respects the family members, all members. सभी परिवारजनों को जो है आपको भी उसी रीति से आदर सम्मान देना जरूरी है। आप डांटिए, आप सिखाइए, आप चिल्लाइए, लेकिन फिर भी उसका सम्मान जो है देना अति आवश्यक है। और ये फादर का क्वालिटी, यू नो व्हाट, फादर इज अ कॉलिंग। पिता बनना जो है एक परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को भी जब बुलाते हैं पिता परमेश्वर कहते हैं। वाह, व्हाट अ कॉलिंग इट इज टू बी अ फादर। गॉड द फादर ऑलमाइटी, परमेश्वर को हम लोग पिता से संबोधित करते हैं, और वो पिता होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ब्लेसिंग आपको मिला है। और ये सारे क्वालिटीज ये परमेश्वर की क्वालिटीज है, क्योंकि वो भी हमारा पिता है, और उससे सीखकर हम इस क्वालिटीज को अपनाना जरूरी है, क्योंकि वो FATHER उस सही रीति से अपने कार्यों को करता है। परमेश्वर फैब्रिकेट्स फ्यूचर, वो अपने हमारे भविष्य को बनाता है। जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 क्या कहता है? मेरे पास आपके लिए वो योजनाएं हैं जो आपको हानि ना होने दे, लेकिन आपके भविष्य को अच्छा करेगा, आपको सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। यस, गॉड मेक्स अ प्लान टू बिल्ड अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए। जैसे हम पिता होकर करते हैं, परमेश्वर पिता हमारे लिए करता है। ए एक्सेप्ट्स यू, यीशु मसीह ने उस वक्त जान दिया जब आप यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, जब हम इंसान पापी थे। उसने उस समय पर अपने को अपनाया है। यस, अपने आप को देकर, अपने आप को बढ़ाई करके नहीं, अपने आप को कुर्बान करके वो हमें उसी रीति से अपनाया और सही मार्ग दिखाया। थर्ड, ट्रस्टवर्दी, आज भी वो उतना विश्वास योग्य है परमेश्वर। अगर आप किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, अपने पिता के पास जाइए। यस, गॉड आवर फादर हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति से हमें बचा सकता है, वो विश्वास योग्य है। उसके ऊपर विश्वास डरिए, क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास करता है अपने कार्य को सफल देखता है, नई गवाही को देखता है। होनिंग मशीन, हमारा परमेश्वर जो प्रतिभा, जो टैलेंट्स हमारे अंदर है, वो किसने दिया? वो परमेश्वर ने दिया है। और वो चाहता है कि हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट जो है परमेश्वर के कार्य के लिए, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो, और उस रीति से वो धार देते जाता है। कब धार होगा? जब जो टैलेंट हमें दिया है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे टैलेंट्स को परमेश्वर के कार्य के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे, हमारा टैलेंट्स और अधिक रीति से बढ़ता जाएगा। हालेलुया। That's why God is a honing machine. वो प्रतिभा देता है, प्रतिभा को जो है पॉलिश भी करता है। Exemplary leader for all of us. यीशु मसीह जो है अपने आप को कुर्बान करके हम सभी के लिए एक मिसाल बना है।
वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर होने के बावजूद इंसान बनकर आया। वो सिखाना चाहता था हमें कि कैसे इंसान को जीना है, कैसे प्यार करना है, कैसे माफ करना है, कैसे मदद करना है, कैसे दूसरों के लिए अपने जिंदगी को जीना है, कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाना है और कैसे जिंदगी को जीना है। हाउ वी हैव टू लिव अवर लाइफ, उसके कैरेक्टर में बढ़ना है। ही इज अवर एग्जाम्पलरी लीडर। उसने करके बताया, वो सिर्फ बोला नहीं, उसने करके दिखाया, इसलिए इंसान बनकर आया। वो सिर्फ मर के जिंदा होने के लिए नहीं, उससे पहले जो उन्होंने कार्य किया है 33 इयर्स का जो उनका लाइफ है, उन्होंने सिखाया कि कैसे जिंदगी होना चाहिए, कैसे जिंदगी जीना चाहिए। एंड लास्ट आर रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टेड। आज सबसे ज्यादा आदर सम्मान हम अपने यीशु मसीह को देते हैं। जो लोग नहीं जानते ना, वो भी यीशु मसीह को सम्मान देते हैं। और आने वाले दिनों में जो है, जो नहीं जानते वो भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर घुटना उसके सामने झुकेगा। यस, एवरीवन विल रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट। और वो हमको इतना आदर सम्मान देता है, क्योंकि अगर नहीं देता, अगर हमारी गलतियों को हमेशा वो देखते रहता, तो पता नहीं हम लोग जिंदा भी रहते क्या। इतनी गलतियां हम लोग करते हैं, लेकिन उसने आदर से, सम्मान से हमें उभारने का एक जिम्मेदारी लिया है। हर पल वो करने की कोशिश करता है। इसलिए आज जो है उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को हम लोग रिस्पेक्ट दें और सही रीति से जो है अपने कार्य को करें। इफिशियंस में जो है चैप्टर 4 में ऐसा लिखा है कि अपने बच्चों को जो है गुस्सा आने वाला, फ्रस्ट्रेट, इरिटेट करने वाला कार्य को ना कीजिएगा। बहुत सारे पिता ऐसे करते हैं। तो जब हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको सही शब्दों में जो है डालना हमको सीखना बहुत जरूरी है। और बच्चे जो है पिता का सम्मान करना जरूरी है। यीशु मसीह वो तरीकों से जो है हमको सिखाया, इसलिए आज हमारे लिए वो पिता है, हमारे लिए वो गॉड है, हमारे लिए वो फादर है जिससे हम लोग प्रेयर करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे जो है मदद कर, हमारी पिता परमेश्वर, वो पिता जैसा है, वो नाम, वो पिता का नाम आपको दिया है, जो आज सभी लोग पिता हैं। जो भी पिता आज ये मैसेज को देख रहा है, इस रीति से अपने आप को बनाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपको दिया है एक फादर होने का। उस फादर की जिम्मेदारी को सही रीति से निभाइएगा और उस ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपको परमेश्वर अगुवाई करे, सही पिता, उनकी तरह पिता बनने का जो है अगुवाई आपको मिले। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू। ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ. ಎಲ್ಲ
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲಾಂತಿಂದಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ ಯಾವ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ 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 ಕೃಪೆಯೇ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारा पिता परमेश्वर, फिर एक सुंदर समय दिया तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तूने कहा जब 2 या 3 बैठ के मैं नाम की स्तुति करेगा मैं उसके बीच में रहूंगा। प्रभु जी विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी तेरी आशीष हम पे रहेगा करके। प्रभु जी विशेष बात है प्रभु जी आज का फादर डे अच्छी तरह से चलाए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन सभी को दिलों को कार्य करेगा ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु जी। विशेष बात है प्रभु जी जो तेरे कलीसिया प्रभु जी आज बंद है प्रभु जी, उस कलीसिया के द्वार खोलने के लिए मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु जी, ताकि उधर आके प्रभु जी सभी लोग अपनी महिमा प्रार्थना कर सके प्रभु जी। विशेष बात है जो भी अपने घर पे बैठ के फैमिली प्रेयर कर रहे हो प्रभु जी, उन फैमिली प्रेयर को उत्तर देने के लिए मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सभी पे आशीष करने के लिए मांगता हूँ, जो भी हॉस्पिटल में जो भी लोग बीमार हैं उस बीमारी को हटा के उन्हें चंगाई करने के लिए मांगता हूँ। और क्या मांगू राजा, तेरी आशीष हम पे ऐसे ही रखे, आदर गौरव महिमा सभी तुझे को देते हुए छोटी सी प्रार्थना मेरे केवल जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ। सुनना कबूल कर मेरे स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, आमीन। ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.
ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೆನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सभी को जय मसीह की. और उसी रीति से सभी को मैं विश करना चाहता हूं, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी फादर्स डे. परमेश्वर हर पिता को जो है वो आशीष दे, सही रीति से अपनी जिम्मेदारी को निभाए और हर बच्चों को वो मार्गदर्शन दे कि अपने पिता का सम्मान आदर कर सके. तो इसलिए सभी को हैप्पी फादर्स डे. परमेश्वर आपको आशीष करे. थैंक यू.